Hello, friends. Let's continue with the last topic that we were discussing. The topic that we were discussing was about the expansion of ideas. Children, we discussed related to the icebreakers, right? So अलग अलग आइडियाज देखे थे हम लोगों ने जो वर्ड सीजन से रिलेट करते हैं. Then I also told you about a particular season, about the monsoon season, and then those characteristics, children, that we had discussed. Acha, if you remember, I just told you about one homework, right? Any proverbs associated with the word season? तो आप भी try कर सकते हो. Make hay while the sun shines. For example, no season comes without a fruit, right? ऐसे कुछ proverbs होते हैं जो word season से relate करते हैं. अच्छा, then I went on to discuss, children, some some topics which were related to view and counter view. तो व्यू काउंटर व्यू से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे कि जूनियर कॉलेजेस में स्पोर्ट्स एसेंशियल है क्या, या फिर एग्जांपल आर कॉलेज इलेक्शंस एसेंशियल इन जूनियर कॉलेजेस, सेल फोन्स इज अ नीड ऑफ द टाइम्स, एंड शुड द अर्न एंड लर्न कॉन्सेप्ट शुड बी मेड मैंडेटरी या फिर कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स. चिल्ड्रन, दैट्स व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर. Today's lecture we will just try to understand, children, कि what exactly is this expansion of ideas and how can it be attempted, children. अच्छा, generally children, if you're talking about the exams, अगर आप exams की बात कर रहे हो तो exams में आपको कोई भी एक आध proverb, एक आध idiom, एक आध phrase दिया जाएगा, and then children you will be asked to write a paragraph on that. Anything, children, जैसे कि last time मैंने आपको बोला था कि we eat to live and not live to eat, and then they ask you write a paragraph on this. So children, we need to elaborate this idea and convert it into a paragraph. Then children, that will be known as expansion of ideas. अभी expansion of ideas का पूरा जो concept है, children, I'll just tell you how to write a paragraph from a small sentence, how we can convert it into a paragraph of almost 1 or 2 pages. Children, the paragraph, जैसे आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पैराग्राफ एग्जैक्टली होता क्या है. तो पैराग्राफ इज नेसेसरीली अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड सेंटेंसेस. क्या बोला बच्चों लोग? अ पैराग्राफ इज नेसेसरीली अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड सेंटेंसेस. सो बहुत सारे सेंटेंसेस को जब आप कनेक्ट करके उस आइडियाज को अरेंज करते हो तो automatically, children, will be known as a paragraph. अच्छा, and it develops into one topic sentence. तो टॉपिक के से रिलेटेड ही सेंटेंसेस रहेंगे उसमें. Now you will feel like, sir, what exactly is a topic sentence? टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? तो children, in order to understand what is a topic sentence, it's mentioned here. And what have they mentioned? कि टॉपिक सेंटेंस का मतलब होता है बच्चों लोग, it's a subject, a proposition or a statement which is expressed in a sentence. And a good topic sentence is a brief and encapsulates the central theme. मतलब क्या है बच्चों लोग कि एक ही सेंटेंस रहेगा बच्चों लोग जो पूरे के पूरे पैराग्राफ की थीम को एक्सप्लेन करेगा, राइट? हाँ, तो सपोज फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन, आइडियली इट इज रिटन इन 3 पार्ट्स, वी कैन से 3 अलग अलग पार्ट्स में हम लोग पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं. The first one, children, that's known as introductory paragraph आता है. Then children, we have got the main content, that is called as the core content. और उसके बाद में बच्चों लोग will be writing what's known as a concluding paragraph. So along with that, children, see, और वो जो टॉपिक सेंटेंस है उसको हम लोग पैराग्राफ से कभी हटा नहीं सकते क्योंकि वो एक ऐसा सेंटेंस रहता है, चिल्ड्रन, which is actually, जैसे कि मैंने बोला like eat to live and not live to eat, तो that is called as a topic sentence ना. हाँ, तो उसको आप कभी मतलब इग्नोर नहीं कर सकते. अभी ये एंटायर पैराग्राफ, चिल्ड्रन, which we are going to write, तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताए. तो उसमें से सबसे पहला जो पार्ट आता है, चिल्ड्रन, इट विल बी नोन एज अ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. whenever you go to write a paragraph, मतलब जब आप कुछ expansion of ideas करोगे तो the question arises, children, like how
will I introduce that paragraph to the children या फिर to anyone who is reading it out we can say. अच्छा, सबसे पहली बात बच्चों लोग कि a good paragraph will always be associated with the topic sentence, either at the beginning, in the middle or at the end. मतलब बच्चों लोग आप जो कुछ भी लिख रहे हो शुरुआत में हो, बीच में होगा बच्चों लोग, at the end होगा, लेकिन आप जो कुछ भी लिखोगे उस टॉपिक सेंटेंस से रिलेट करेगा. जैसे कि इफ यू आर मेंशनिंग समथिंग लाइक क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये आपका टॉपिक सेंटेंस है. तो बच्चों आप जितने भी सेंटेंसेस बनाओगे नेसेसरीली चिल्ड्रन दे शुड बी एसोसिएटेड विद द टॉपिक सेंटेंस. तो कहीं पे भी आप उसका कनेक्टिविटी नहीं छोड़ोगे, दैट शुड ऑलवेज एसोसिएटेड विद द टॉपिक सेंटेंस. अच्छा, नाउ देयर इज, हाँ तो ये पहली बात होगी चिल्ड्रन, क्या कि all the paragraphs should necessarily be associated with the topic sentence. Now, secondly, children, there's a word that they have used here that's called a symbolism, or the idea should be clearly understood. मतलब आप जो symbols use करते हो वो सामने जो भी पढ़ेगा आपका paragraph, children, he should be able to understand it in a manner which is as simple as possible, we can say, children. जब भी आप लिटरल मीनिंग को बताने के लिए जाते हो, मतलब आपको एक्चुअली जो बताने का है, कभी कभी हम लोग चलो सिंबल्स यूज करते हैं ना, या फिर वी ऑल्सो यूज मेटाफोर्स जो एक फिगर ऑफ स्पीच आता है. हाँ, तो आई थिंक लाइक फॉर एग्जांपल wherever we require that the literal, symbolic and metaphorical meanings need to be given. Now, to expand an idea, the focus should be on words of expression, of thoughts which are put forth, the hidden meaning or deeper thought behind the given idea. अभी आप बात कर लो ना बच्चों लोग, जैसे कि मैंने बोला eat to live, not live to eat. तो बच्चों लोग उसका जो hidden meaning है, उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, उसका डीपर थॉट क्या होता है बच्चों लोग, एक सेंटेंस के अंदर जाके हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं. मैंने इसे के लाइक अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. तो दैट मीन्स चिल्ड्रन कि लाइक you need to go deeper into the meanings of that particular sentence. And one more thing children, in short, जो idea आपको दिया हुआ है, that is called as children, the given idea needs to be well evaluated and interpreted accordingly. मतलब बच्चों लोग एक छोटा सा सेंटेंस रहेगा जो आपको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करना पड़ता है उसको. अभी देखो बच्चों लोग, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, एक छोटा सा सेंटेंस, आप इमेजिन करना कि उसको कितना इवैल्यूएट करना पड़ेगा बच्चों लोग, आप उसको कितना इंटरप्रेट करोगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज जनरेट करके बच्चों लोग फिर आप उसका एक पैराग्राफ राइटिंग करते हो, राइट. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस चिल्ड्रन कि लाइक जैसे ही आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ खत्म करोगे, as soon as you end the introductory paragraph, then children we go to mention what is the core content. Core content का मतलब क्या होता है, the main paragraph children. So here we come children regarding the core content of the paragraph. सवाल आता है कि like what you should be maintaining in the core content. अच्छा, when you are trying to elaborate various aspects of the idea, elaborate का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, clarify we can say, क्लियर करना. अच्छा, एक आइडिया आपको दिया है, आप उसको एलैबोरेट कर रहे हो, तो वी नीड टू पे अटेंशन टू द फॉलोइंग पॉइंट्स, और वी नीड टू कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स जब भी आप कोर कंटेंट लिखोगे. अच्छा, तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे आपको दिया गया है चिल्ड्रन, व्हाट डज दैट से, इट सेज एक्सप्लोर पर्सपेक्टिव्स. पर्सपेक्टिव मतलब उसके हर एक एंगल को आप कंसीडर करोगे जो भी सेंटेंस दिया गया है. अच्छा, फिर आप इंस्टेंसेस यूज कर सकते हो. इंस्टेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, दे आर समथिंग रिलेटेड टू द एग्जांपल्स देने का. एक छोटा सा आप स्टोरी भी बता सकते हो विच आर नोन एज द एनेक्डोट्स. अच्छा, एंड देन सपोज चिल्ड्रन वी कम अक्रॉस, आप अपना खुद का कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो. यस, वो किसी और का एक्सपीरियंस हो सकता है चिल्ड्रन, और इट कुड ऑल्सो बी योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट. अच्छा, तो सपोज एवरीवेयर चिल्ड्रन, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ऐसे एक फॉर एग्जांपल कि लाइक वी हैव अ सेइंग दैट वे ना. हाँ, तो आप उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव बता सकते हो कि लाइक व्हाट हैपेंस व्हेन यू वेक अप लेट, व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट यू डिराइव व्हेन यू वेक अप अर्ली. आप इंस्टेंसेस दे सकते हो, कोई एग्जांपल्स देना, फॉर एग्जांपल कि लाइक न्यूज़पेपर वाला रहता है बच्चों, देयर आर डॉक्टर्स एंड ऑल, कुछ एनेक्डोट्स भी देख सकते हो,
आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हो कि कैसे आप से एक दिन लेट उठ गए थे और फिर आगे जाके कितना कंफ्यूजन तैयार हुआ था. Yes, you can share out that, children. Now, the next point, children, which is very important, which says that there should be unity and clarity of thoughts. कहीं पे भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप सब कुछ जम्बल्ड अप करके कुछ पैराग्राफ तैयार करो. नो, दे शुड बी ऑल यूनाइटेड एंड दे शुड बी फोकसिंग टुवर्ड्स दैट मेन आइडिया. एंड वॉट एवर थॉट्स यू आर एक्सप्रेसिंग चिल्ड्रन, तो वो थॉट्स क्लियर होने चाहिए. मतलब सामने वाले को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लाइक ही शुड नॉट बी जम्बल्ड अप. They should not be complex, children. They should be clear, simple, and united, we can say. Acha. After that, children, when we come towards the third important point, maintain coherence. Coherence का मतलब होता है बच्चों लोग again यहाँ पे clarity. अच्छा, दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में आपको लॉजिकल लिंक मेंटेन करना है. अच्छा, जैसे कि दो अलग अलग सेंटेंसेस दे शुड नॉट बी अपार्ट इन द सेंस कि लाइक एक सेंटेंस किसी और बात से रिलेट करा है, उसके आगे का सेंटेंस आप कुछ और ही बता रहा हूं. नहीं, दे शुड बी ऑल बेसिकली जॉइन विद सम कंजंक्शंस, वी कैन से. डिस्कोर्स मार्कर जो दो आइडियाज को जॉइन करेगा. अच्छा, कंजंक्शंस आप यूज कर सकते हो एंड, बट, और, इफ, अनलेस, राइट. अच्छा, कंजंक्टिव फ्रेजेस भी होते हैं चलो जो जॉइन किए जाते हैं. एंड इन ईच पैराग्राफ और पॉइंट टू सपोर्ट द सेंट्रल आइडिया. मतलब कहीं पे भी आपको उस मेन आइडिया से भटकना नहीं है बच्चों लोग. बट प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस शुड बी केप्ट इन माइंड. अच्छा, व्हाट इज प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस? प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस का मतलब होता है बच्चों लोग मोर इंपॉर्टेंट आइडियाज. ओके, दिस शुड बी गिवन मोर स्पेस. एंड इफ देयर आर सर्टेन आइडियाज चिल्ड्रन व्हिच आर लेस इंपॉर्टेंट, देन ऑटोमेटिकली दिस आइडिया should be given less space. समझा? इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस. आपको लगता है ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज्यादा डिस्कस करना है. आपको लगता है ये आइडिया लेस इंपॉर्टेंट है, आप उसको थोड़ा कम डिस्कस करोगे. देन द प्रोपोर्शन ऑफ एम्फेसिस. एम्फेसिस मतलब इंपॉर्टेंस या फिर स्ट्रेसिंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. और इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है बच्चों लोग कि जो मेन प्रिंसिपल सब्जेक्ट है इन प्लेस ऑफ प्रोमिनेंस throughout the paragraph. Avoid too many ideas. ज्यादा आइडियाज देने की जरूरत नहीं है. Keep them simple, clear, and important. And remember that this is the most creative part to demonstrate your language skills. तो आप लैंग्वेज में कितने स्किल्ड हो ये अगर आपको बताना है तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन यू कैन मेक यूज ऑफ दिस पैराग्राफ राइटिंग. एंड इट टेल्स यू चिल्ड्रन हाउ क्रिएटिव यू कैन बी. और एक छोटे से आइडिया को आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हो बच्चों, इस टॉपिक से आपको वो बात पता चल जाएगी. अच्छा, देन द थर्ड एंड द लास्ट पैराग्राफ चिल्ड्रन व्हिच कम्स टुवर्ड्स व्हाट्स नोन एज कंक्लूजन. अभी जैसे आप कंक्लूजन की बात करते हो, एट द एंड वी नीड टू सम अप, ओके, सुटेबली विद स्ट्रॉन्ग एंड रेलेवेंट पॉइंट. एंडिंग में आप ऐसा कुछ पॉइंट्स यूज कर सकते हो बच्चों लोग कि लाइक जो पढ़ने वाला रहेगा ना, ही शुड बी लॉस्ट इन थॉट्स, वी कैन से, कि लाइक वो तुम्हारे टॉपिक के बारे में सोचता रहेगा. कभी कभी आपने मूवीज को देखा रहेगा एंड में, मतलब व्हेनेवर यू सी एनी पर्टिकुलर मूवी चिल्ड्रन, कोई भी मूवी देखो, एक मूवी आया था गजनी, एट दी मतलब फॉर एग्जांपल लाइक दैट हीरोइन डाइज ना. अच्छा, आपको लगता है नहीं मरना चाहिए था उसको, वी डोंट लाइक दोस ट्रेजेडीज, लेकिन फिर उसकी वजह से फिर पता है थिएटर के बाहर जाने के बाद भी आप उसके बारे में सोचते रहते थे. मराठी मूवी विच केम अप सैराट, एंड वी सी जो भी दो प्रोटैगोनिस्ट थे बच्चों, मेन एक्टर एंड द एक्ट्रेस, उनको दे वर किल्ड एट द एंड. आपको लगता है यार नहीं मरना चाहिए था ना, लेकिन अगर वो नहीं मरते फिर शायद आप ज्यादा देर के लिए याद नहीं रखते थे, बिकॉज दे डाई. थिएटर से बाहर मुंह लटका के लोग जाते हैं, फिर आई थिंक इट गेट्स स्टक इन योर माइंड चिल्ड्रन. अच्छा, फिर बच्चों अंदर भी आप बहुत सारे प्रोवर्ब्स को यूज करोगे. एंडिंग में तो यूज करना ही है जिसका मीनिंग सिमिलर होगा, ओके, विद द टॉपिक सेंटेंस, वी कैन से. The given one is tit for tat. You may sum up using another similar one, that is reap as you sow. Tit for tat मतलब जैसे करोगे वैसे भरोगे. तो और एक कहावत आती है बच्चों लोग जिसको हम लोग बोलते हैं reap as you sow, मतलब वही जैसे बोओगे वैसे पाओगे. तो आपने नोटिस किया यहाँ पे जो दोनों भी proverbs यूज किए गए ना चिल्ड्रन, those proverbs are actually related, we can say. Okay, so I think that's it. So did you understand children, whenever you go for any particular paragraph writing, you need to understand that we give an introductory paragraph. After giving an introductory paragraph, the second thing that we should not forget is the core content. और फिर आता है चलो
the concluding paragraph, right? So this, children, forms basically what is known as the paragraph writing and the different ideas, we can say, children. Okay, so here कि जैसे हम लोग आइडियाज को एक्सपांड करने के लिए जाएंगे तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे, एक आध एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग. यस, सो की पॉइंट्स फॉर एक्सपांशन ऑफ आइडियाज. एक एग्जांपल दे रहा मैं आपको यहाँ पे. क्या लिखा है देखो, लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ. लव दाई नेबर, दाई मतलब बच्चों लोग योर. तो आप अपने पड़ोसी से उतना ही प्यार करोगे जितना आप खुद से करते हो. वो वाला प्यार नहीं बच्चों लोग आपके मन में जो आता है, दिस इज समथिंग टू रिलेटेड टू नेबरली लव, दैट इज पड़ोसी धर्म बोलते हैं. ठीक है, अभी एक आध की पॉइंट आप यूज करोगे, जैसे कि आप क्या बोल सकते हो, वी शुड लव अदर्स एज वी लव आवरसेल्व्स. मतलब जैसे हम लोग खुद से जितना प्यार करते हैं उतना ही प्यार हम लोगों को दूसरे लोगों को कंसर्न दिखानी है, उतना ही केयर दिखाना है दूसरे लोगों को. इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है बच्चों लोग, कि आपको दूसरे लोगों का कुछ अच्छा करके प्लेजर मिलना चाहिए, प्लेजर इन अदर्स वर्चूज. एंड टू लव मीन्स टू ओवरलुक द फॉल्ट्स. किसी का गलती हो रहा है बच्चों लोग, किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, अच्छा दूसरे लोगों को माफ करना और खुद को भी माफ करना. तो इसका एक्चुअल मतलब वो होता है, लव द नेबर एज दाई सेल्फ. सो इट मीन्स चिल्ड्रन दैट शुड फाइंड सम हैप्पीनेस इन अदर पीपल्स हैप्पीनेस. अच्छा, बाकी लोगों की गलतियों को आप नजरअंदाज करो, उनकी अच्छाइयों को देखो, दूसरे लोगों को माफ कर देना और खुद को भी माफ कर दो. इट्स दी ब्रॉडर मीनिंग वी कैन से. अच्छा, इसी एक ही सेंटेंस के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते थे. देखो, द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक सेंटेंस, इट्स एक्चुअली रिलेटेड लाइक दिस. सबसे पहली बात बच्चों लोग, वी शुड लव ह्यूमन बींग्स. क्या बोला है, वी शुड लव ऑल द ह्यूमन. व्हाई? Because God has created every human being in his own image. मतलब children, if you look at God, okay, and now obviously for example you might not be able to look, and if you look at man or woman, तो बच्चों लोग भगवान ने इन दोनों को जब बनाया तो automatically what he has done, children, you know, he has created them in his own image. तो when you treat other people, you should treat them with love, we can say. सबसे पहली बात है. And love, children, is a fundamental or most important necessity of joy, goodness, pleasure. मतलब अच्छा है बच्चों लोग कब आती है, जब आप एक दूसरे को प्यार दिखाओगे तब. Love ensures peace and harmony. जहां पे लोग एक दूसरे से प्यार के साथ पेश आएंगे तो वहां पे बच्चे लोग हिंसा या फिर एग्जाम्पल के लाइक वायलेंस, ओके, ये सब चीजें होगी नहीं. तो ऑटोमेटिकली देयर शुड बी पीस एंड हार्मनी, वी कैन से. अच्छा, लव क्रिएट्स बॉन्डिंग. लोगों के बीच में बच्चे लोग बॉन्डिंग होता है, दे आर अटैच्ड टू वन अनदर, चिल्ड्रन, वी कैन से. एंड लविंग समवन इज प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम हार्म. किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, आप उनके हक के लिए लड़ोगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अन्याय के खिलाफ आप मेहनत करोगे. अच्छा, अभी बच्चों एक और कंटेंट होता है. सवाल आता है कि लाइक हाउ आर वी गोइंग टू कंक्लूड दिस पैराग्राफ. अच्छा, जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन कि लाइक अगर हर एक व्यक्ति ने ये जो प्रोवर्ब हमने अभी बोला है, कौन सा, लव योर नेबर, अगर इसको सब लोग फॉलो करेंगे तो आप सबको पता है कि दुनिया है ना विल बी, मतलब दुनिया में आपको बहुत सारा पेशेंस, ओके, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, टॉलरेट करेंगे, अच्छा, समझ के लेंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेगा बच्चों लोग, कम्युनिकेशन, अप्रिसिएट करने का. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, पीपल विल बी यूनाइटेड. एंड इन फैक्ट चिल्ड्रन, वी कैन से दिस एंटायर, एक छोटा सा थॉट इस पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को बदल सकता है. When we love each other, we take pleasure in each other's achievements. जब आप दूसरे को प्यार दिखाओगे तो उसके कामयाबी पे आप खुश हो जाओगे. आप साथ में मिलके काम करोगे ना, we'll be working together, we'll be able to achieve some harmony. मतलब we stay different community children when they stay together without finding any differences, that's called a harmony, peace, यानी शांति होती है. And we can sustain the universe. मतलब दुनिया को हम लोग और ज्यादा सस्टेनेबल और ज्यादा परमानेंट बना सकते हैं, राइट. अच्छा, ये कौन से आइडिया को एक्सपांड किया गया बच्चों लोग, लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ.
तो आपने देखा उसको कैसे हमने एलैबोरेट किया हुआ है. दिस वन मोर चिल्ड्रन दैट्स डन फॉर यू हियर, तो आप उसको भी थोड़ा सा एनालाइज करके देख सकते हो, तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया आएगा. तो मैं बाद में आप लोगों को और भी कुछ टॉपिक्स बता सकता हूं जिसको आप एलैबोरेट करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, मतलब यू शुड बी एबल टू ट्राई इट आउट देयर. अच्छा, now coming here children, we have got one more topic to analyze here, that is travel broadens the mind. क्या दिया हुआ है? Travel broadens the mind. अच्छा, ये छोटे से थॉट को आपने देखा उन्होंने 3 पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करा के दिया यहाँ पे. चिल्ड्रन दिस विल बी ऑब्वियसली नोन एज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर कंटेंट करके बोलेंगे इसको. एंड चिल्ड्रन वेरी इंपॉर्टेंटली दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कंक्लूजन. इसको आप क्या बोलोगे? कंक्लूजन. ट्रैवलिंग ब्रॉडन्स द माइंड, मतलब जितना ज्यादा ट्रैवल करोगे आप बच्चों आपका माइंड उतना ही ब्रॉड होगा. ब्रॉड मतलब साइज में नहीं बच्चों लोग, तो विल बिकम मोर ओपन माइंडेड वी कैन से. क्या क्या लिखा है देखते हैं जरा. स्टार्टिंग कैसे किया है देखो. अगर आपको सबसे बेस्ट एजुकेशन चाहिए ना बच्चों लोग तो ट्रैवल करना, क्योंकि अपने आजू बाजू वाले एनवायरमेंट से जब हम लोग सीखना चालू करेंगे तो इट इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग. Children, this world should be like a school for us. This world should be like a playground where we go, we explore out things, and it can keep on broadening our mind, we can say children. Imagine करना अगर आपको पूरा का पूरा जिंदगी एक ही जगह पे बितानी होती थी तो मतलब क्या होगा पता है? You are like the proverbial frog in a well. आपने देखा यहाँ पे इन्होंने एक proverb यूज किया, frog in a well. एक फ्रॉग बच्चे लोग जो है कुएं के अंदर रहता है तो उसके लिए लगता है कि हाँ ये मेरी दुनिया है करके. जब वो बाहर आएगा बच्चे लोग देन यू विल अंडरस्टैंड कि लाइक अरे ऐसी बहुत सारी दुनिया यहाँ पे भरी हुई है. बट फॉर दैट वी नीड टू ट्रैवल आउट ऑफ योर होम, वी कैन से चिल्ड्रन. अच्छा, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इफ यू डोंट ट्रैवल देन यू आर गोइंग टू बिकम वेरी नैरो माइंडेड, क्योंकि यू विल नेवर अंडरस्टैंड चिल्ड्रन व्हाट इज द वर्ल्ड आउटसाइड. बाहर की दुनिया क्या है ये तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, मतलब यू विल नॉट अंडरस्टैंड. जो लोग बोलेंगे उसके ऊपर आप विश्वास करोगे. अच्छा, देयर इज नो डाउट दैट ट्रैवलिंग ब्रॉडन्स द माइंड एंड एनलिवेंस द स्पिरिट. तो सीधी सी बात है बच्चों के लिए, आप जितना ज्यादा ट्रैवल करोगे आपका माइंड उतना ही ब्रॉड होगा और आपका जो स्पिरिट होता है बच्चों लोग, इट्स योर एंथुसियाज्म वी कैन से चिल्ड्रन, इट विल बिकम वेरी लाइवली. आपने देखा कितना कैची पैराग्राफ बनाया देखो. अच्छा, सेकेंड वाले जो कोर कंटेंट में, अपार्ट फ्रॉम वीविंग ऑफ नेचुरल एंड हिस्टोरिकल साइट्स, जब आप घूमने के लिए बाहर निकलो तो आप नेचुरल चीजें देखोगे, बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें आप देखोगे, लेकिन ट्रैवलिंग विल ऑल्सो एनेबल अ पर्सन टू मीट डिफरेंट पीपल. इमेजिन करना मतलब आप कितने सारे लोगों से मिलोगे, उनके रीति रिवाज, हाँ वो लोग ड्रेसिंग कैसे करते हैं, उनका कल्चर क्या है, वो लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, और ये हर एक चीज को आप बहुत नजदीकियों से देखोगे चिल्ड्रन. And meeting different people makes a person broad-minded and tolerant. आपको लगता है कि कभी कभी पता है हम लोगों के मन में किसी के लिए बहुत नफरत होती है, और फिर जब आप उनसे मिलते हो, उनसे बात करते हो, तो फिर आपको पता चलता है कि अरे मैं गलत सोच रहा था इन लोगों के बारे में, and then you become tolerant. अच्छा, traveling brings people closer and broadens one's outlook. लोग नजदीक आएंगे बच्चों लोग यहाँ पे, ओके मतलब एग्जाम्पल, एंड एट द सेम टाइम उनका आउटलुक बच्चों लोग और ज्यादा ब्रॉड होगा. आपके मन में बच्चों लोग जो भी प्रेजुडाइस होता है ना, प्रेजुडिस मतलब आप किसी व्यक्ति के बारे में आपने पहले अपने दिमाग में एक गलत बच्चों लोग इमेज बना के रखा है कि हाँ ये इंग्लिश लोग ऐसे ही मतलब एग्जाम्पल वी कैन से दे आर वेरी एरोगेंट वी कैन से. तो क्या पता बच्चों आप कभी ट्रैवल करने के लिए इंग्लैंड में गए, वहां पे आप लोगों से मिले और फिर आपको पता चला कि लाइक हाउ नाइस दे आर. जब इंग्लैंड के इंडिया के एयरपोर्ट पे जब आप लाइन में खड़े थे फिर आपने देखा कि लाइक वहां पे भी लोग मतलब सबको आगे भागना ही होता है. जब आप इंग्लैंड में एयरपोर्ट पे खड़े थे, आपके पास आपके साथ में आपका छोटा बच्चा था, और जैसे आप लाइन में खड़े थे कोई आता है आपको बोले कि सर यू डोंट हैव टू स्टैंड इन अ लाइन, आइए आपको यहाँ पे डायरेक्टली अंदर जाने को मिलेगा क्योंकि आपके साथ में छोटा बच्चा है. अभी आपने जो सोचा था ना कि लाइक इंग्लिश लोग जो बहुत एरोगेंट होते हैं, सडनली आपको पता चला कि अरे नहीं, दिस पीपल आर वेरी लविंग इन नेचर एंड दे केयर सो मच, राइट. अच्छा, और जब आपके मन में जो गलत फहमियां होती है ना वो सब दूर हो जाएगी, एंड देन यू विल बिकम द रियल
citizen of the world in true sense. आप world citizen बन जाओगे. Therefore, never lose any opportunity to travel. बच्चों ध्यान रखना. अब में से बहुत सारे लोगों ने खुद को एक सवाल पूछना है कि मैं मतलब अपने जोगेश्वरी, मलाड, मुंबई से बाहर गया हूं क्या, या फिर कुछ लोग रहेंगे जो फॉर एग्जाम्पल के लिए कभी महाराष्ट्र से बाहर नहीं गए. कम से कम अपने इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स है. जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा चिल्ड्रन, यू कैन ट्रैवल. वेदर इज लाइक नॉर्थ में जाना, वेस्ट की तरफ जाओगे, साउथ में ट्रैवल करना, मीट पीपल, एंड देन यू विल रियलाइज चिल्ड्रन हाउ broaden your mind is. And very importantly children, if you can afford, in some stage of life you can travel the entire world and get to know the people, and you will become a world citizen. आप बनोगे in a true sense, we can say. Therefore कोई भी opportunity miss मत करना बच्चों लोग. It will be an experience well worth time and money. मतलब आपने जो वक्त डाला है इसमें, जो पैसा डाला है, वो सब आपका वसूल होगा. The world is a book. ये दुनिया बच्चों लोग एक किताब है, और जो अपने घर के अंदर ही रहेगा वो सिर्फ एक ही पेज पढ़ेगा. राइट? अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको पूरा बुक समझ में आएगा चिल्ड्रन. हाउ नाइसली दे हैव पुट फॉरवर्ड द आइडिया चिल्ड्रन सी. राइट? अच्छा, तो चिल्ड्रन ओवरऑल दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, वी कैन से. अच्छा, तो आप कभी कभी खुद भी बच्चों लोग आप ट्राई कर सकते हैं ना कि हम लोग इन आइडियाज को कैसे एक्सपांड कर सकते हैं करके. तो विल जस्ट ट्राई इट आउट, वी कैन से चिल्ड्रन. कुछ टॉपिक्स को लेके जब भी आपका एग्जाम रहेगा तो आप वहां पे भी ट्राई कर सकते हो. मैं भी आपको कुछ टॉपिक सॉल्व करा के दूंगा, नहीं तो आपको कुछ टॉपिक्स का नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि लाइक आइडियाज को किस तरीके से एक्सपांड किया जाता है. राइट? अच्छा, तो चिल्ड्रन फर्स्ट 2 चैप्टर्स वी स्टडीड ऑन टू द समिट, फिर फॉर एग्जाम्पल बीइंग नेबरली, फिर हमने 2 पोएम्स भी देखे, चेरी ट्री और द सोवर. अभी मैंने आपको एक्सपांशन ऑफ आइडियाज का टॉपिक पढ़ाया चिल्ड्रन. इन द कमिंग लेक्चर आई विल बी टीचिंग यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा. तो वो टॉपिक अपना नेक्स्ट रहेगा. राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर. बाय एवरीवन.